लास्ट क्लास में हमने जो है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के हवाले से बात की और उसी सीक्वेंस में अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। वी टॉक्ड अबाउट कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हैं, कैसे कैलकुलेट होती हैं और उसकी लोकेशन कैसे कैलकुलेट होती है किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर। Based on that, we solved this problem in which there was a gate closing and opening of 5 feet और उसके साथ हमने फिर resultant forces calculate किया and then we calculated जी के पॉइंट सी के ऊपर रिएक्शन फोर्स क्या होगी। इसी तरह की एक प्रॉब्लम आज हमारे पास और है, उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारी फर्दर जो प्रैक्टिस इस हवाले से हो जाए और फिर हम अगले टॉपिक जो कि हमारा प्रेशर प्रेस का टॉपिक है उसको लेके चलेंगे। So we have a 4 diameter circular gate, 4 meters diameter circular gate in the figure, and it is located on an inclined wall that is 4 meter wide, that has 4 meter opening, and the reservoir is filled with water. The gate is mounted on a shaft. Here we have a shaft. The gate can rotate about this shaft. It's like that. This is the opening, and the gate is mounted on the shaft. So the gate can rotate about this axis. Like if I apply moment at about this shaft, the gate will turn to some position like this new position. Okay. तो इस तरह से गेट जो है फिर रोटेट कर सकता है और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, देयर इज अ स्टॉपर एट वन एंड ताकि गेट की मोशन जो वो एक ही डायरेक्शन में हो। जब वो फुल ओपन हो जाए इस तरफ तो उसके बाद दोबारा जब वापस वो दोबारा से ऊपर से रोटेट करके नहीं आए बल्कि इस तरफ से उसको वापस रोका जा सके। ठीक है, the gate is mounted along a horizontal diameter shaft and the water is 10 meter above the shaft. The location of the shaft is at the centroid of the gate and it is 10 meter above the depth of the water. You need to determine the magnitude and location of the resultant force exerted by the gate, exerted on the gate by the water, and the moment that would have to be applied to the shaft to open the gate. The moment at the shaft in order to open the gate. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। सो हमने वही प्रैक्टिस करनी है जो हम लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने की थी। वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स Fr by using the formula gamma equal to gamma hc, Fr equals to gamma hc multiplied by the area of the circular gate, cross-sectional area. Here gamma is that of the water, we know that it is 62.4, and hc is equal to, sorry, it is SI units 9.81 kilonewton per meter cube multiplied by, or we can write it in as 10 raised to power 3 meter न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, hc क्या होगा जी? this hc it is the location of the centroid of the gate below the water, and here the centroid of the circle is at the center, and we know that this shaft is located exactly at the centroid. So this 10 meter distance is equal to hc. So that 10 meter into area of the cross section on which the force is acting, and that cross section is circular cross section, and area of the circle is pi r square. So pi multiply by r. R is 4 meter is diameter, so r is 2. So I write the square of 2 as 4. Okay. So the resultant force Fr is 9.81 into 10 to the power 3 into 10 into pi into 4, 9.81 into 10 raised to power 3 multiplied by 10 multiplied by pi is 3.14 multiplied by 4 comes out to 1.23 meganewtons, right? It is 1.23 meganewtons. Right? Yes. Now the location of this force. By location we mean YR and XR. YR is equal to IXC divided by YCA plus YC.
So for circle, we know that IXC is from this figure. IXC is pi r4 by 4. Okay, so it is pi into radius raised to the power 4 divided by 4. YC equals to, in the corresponding figure, we see that YC is given as 10 divided by sine of 60. Okay, so YC is 10 divided by sine of 60, which is 11.55. So we know it has 11.55, and also we know the area of this circle as pi r square. So simply we put in the values here. IXC is pi r4 divided by 4 into YC, which is 11.55, multiply by the area, which is pi r square. Plus YC, which is 11.55. So r square is gone with this as r square, and pi is gone with this pi. So we have r square divided by, which is 2 square divided by 4 multiplied by 11.55 plus 11.55, which is 11.64. So YR is 11.64. What about XR? Anyone who is sure or who is confident that he can calculate XR? What's the formula for? Yes. IXYC तो 0 होगा, तो वो term नहीं चाहिए. Yes, XR is equal to, I just write the formula, फिर हम इसकी discussion कर लेते हैं. IXR equals to I X Y C, ऐसे ही है, divided by YCA plus XC. Okay. From the figure, we can see that IXYC is 0 for circle. For any symmetrical shape, it is usually 0. So we make it 0 here. Okay. So this term is 0. So XR equals to XC. Now what about XC? For a circular shape, we can see that the centroid is located exactly on the center of the circle. Okay, if I draw this line for you here, this is your y-axis. This green line is your y-axis, and the centroid of the circle is exactly on this y-axis. So what is XC here? If the point is located on y-axis, then value of x coordinate is 0. So XC should be 0. So x-axis ये black line के along है ना? Yes, x-axis is this one, this orange line. I draw it here. This is your x-axis, right? And this is your origin point. ठीक है, समझ आ गई बात? जी सर. So XC is also 0, so XR is 0. So XR is located on the, so the center of pressure is also located on the y-axis, right here. So ये हमने draw कर दिया. We marked YR on the axis line. This is YR, and this is XR. This is the coordinate XR and YR. This point is basically your coordinate, which we call center of pressure as XR, comma YR. This is the coordinate point XR, YR.
Okay, is it clear? There is magnitude of the resultant force and the location. सर ये Now XC 0 का चाहिए, मुझे समझ नहीं आई। ये समझ नहीं आया, इसको ऐसे देखें मेरे भाई। दिस इज योर गेट। किसी भी सर्कुलर बॉडी का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? इसके सेंटर में। सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। वी ड्रॉ द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज द सेंट्रॉइड, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी हमारे पास एक एक्सिस सिस्टम है जो कि सेंट्रॉइड से पास करता है। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्रीन लाइन इज योर वाई एक्सिस एंड ऑरेंज इज योर एक्स एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब इस सेंट्रॉइड पॉइंट के ऊपर आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? ये जो पॉइंट है जिसको मैंने सेंट्रॉइड मार्क किया है यहाँ पे, इसमें से ये वाई एक्सिस पास कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं मुझे? जो मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछे थे उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बता सकते हैं? इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बता दें मुझे। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। मुझे कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं बता रहे फिर? सर ये X से लेके यानी YC तो होगा जो कि हमने 11.5 लिया है, तो जी जो किस तरह, ये तो मुझे समझ नहीं आया। मेरे भाई, अच्छा इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। जी एंड वी हैव सम पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये ग्रीन पॉइंट में मार्क कर, इसको हम ए कह देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं मुझे पॉइंट ए के? दिस डिस्टेंस इज लेट्स से y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर इसके तो 0Y। 0y1 होंगे, ठीक है। जी सिमिलरली यहाँ पे भी जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? दिस डिस्टेंस इज YC, ऐसे ही है, अलोंग y एक्सिस है। अलोंग एक्सिस वो कहाँ पे लाई कर रहा है? एट द ओरिजिन, ऐसे ही है। एक्स से तो वो मूव ही नहीं कर रहा, दिस इज योर एक्स लाइन ना। तो अगर ये सेंट्रॉइड यहाँ पे होता या यहाँ पे होता फिर तो एक्स की कोई वैल्यू आती, ठीक है। बट इट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, तो जब ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी? एनी पॉइंट ठीक है लाइंग ऑन द सर, वाई एक्सिस है, ठीक। तो दिस कोऑर्डिनेट इज बेसिकली 0, YC, XC इज 0। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? So now we move on to part B of this question. The moment that would have to be applied to the shaft to open the gate. जी moment कैसे calculate करेंगे, कितनी moment apply करनी पड़ेगी? प्रेशर की वजह से मोमेंट बन रहा है, पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे। हम्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय सेंटर से जो भी उसका डिस्टेंस बनता है, और yes, उसको इक्वल कर देंगे इसके रेडियस के साथ। मतलब फोर्स जो अप्लाई करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। what we will do, this is your force, let's say ये आपकी फोर्स FR है, यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। And it is acting at a distance YR, ऐसा ही है। जी सर। लेकिन शाफ्ट जो है वो किसके अबाउट रोटेट कर सकती है, गेट किसके अबाउट रोटेट कर सकता है? दिस शाफ्ट, ऐसा ही है जो शाफ्ट लगी हुई है यहाँ पे सेंट्रॉइड के ऊपर, YC पॉइंट पे। ठीक है। So we need to calculate the moment to rotate this gate about the C point, ठीक है। So we need to calculate the moment about the C point. So moment about point C जो FR जनरेट करेगी, कितनी जनरेट करेगी? FR multiply by its perpendicular distance from point C, ऐसा ही है। सी। जी सर। And that is equal to YR minus YC, ऐसा ही है। जी सर। तो FR multiply by
yr minus yc. Clear? We know Fr to be 1.23 meganewtons. And we know that yr is 11.64 and yc is 11.55. This is in meters. So we just multiply 1.23 with 11.55. 0.1107. 0.11 meganewtons. Okay, 0.11 meganewton meters. So this is the moment you need to apply about point C in order to open the gate. Moment equal to or greater than this. ठीक है? समझ आ गई बात? जी सर. किसी को कोई क्वेश्चन हो जिस प्रॉब्लम के अंदर या किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो. तो फोर्स किधर लगा रहे हैं? फोर्स इज FR is located. FR की तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन आ गई ना हमारे पास YR. जी, वो तो वाटर वेट की वजह से सब हो रहा है. ठीक है. This is the force that is stopping this gate from being opening. ऐसे ही है, इस शाफ्ट के अगेंस्ट दिस ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है जी और स्टॉप पॉइंट ने इसको होल्ड किया हुआ है. जी. बट दिस गेट इज एबल टू रोटेट अबाउट दिस शाफ्ट पॉइंट. जो सेंट्रॉइड के ऊपर शाफ्ट लगाई हुई हमने कुछ इस तरह से है. ये आपकी शाफ्ट है. ठीक है. जी, वो समझ गया. बस ये फोर्स हम किस तरफ लगा रहे हैं. तो हमने इस शाफ्ट को रोटेट करना है, इस गेट को शाफ्ट के अबाउट रोटेट करना है. ठीक है. तो that moment has to be created at this point. फिर सही है. ठीक. अच्छा, नहीं बस मोमेंट बताना है, ये नहीं बताना कहाँ लगा रहे हैं. ठीक. पॉइंट सी पे ही अप्लाई करेंगे ना, पॉइंट सी पे ही रोटेट करेगा गेट. सर समझ गया मैं. जी, किसी और की कोई क्वेश्चन हो इसमें, कोई चीज समझ ना आई हो? क्लियर है? Okay, then we move on to today's topic. The new topic that is pressure prism. जो चीजें अभी हमने इक्वेशन के थ्रू सॉल्व की, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी लोकेशन, अब हम उनको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ग्राफिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी. लेट्स से वी हैव सम कंटेनर लाइक दिस. And it is filled with some liquid. Let's say this is our liquid surface, and on top of it, this is our free surface. इसके ऊपर atmospheric pressure act कर रहा है. This is free surface. This elevation is H, and the cross section of this container is rectangular. Basically, this thing is a rectangular thing like this. ठीक है? ये इस तरह की rectangular चीज है. Now we know that at the top surface the pressure would be equal to 0, and bottom it would be equal to value something like gamma h, and in between it will decrease linearly from 0 to h. Like this. In between values जो हैं वो टॉप से इंक्रीज होना चाहिए. gamma h1, gamma h2, gamma h3 and gamma h4 and finally gamma h. ठीक है, इस तरह से वैल्यू इंक्रीज होते होते यहाँ पे पहुंच जाएंगे. We know from our previous lecture that Fr on this wall would be equal to gamma hc into a. ऐसा ही है. जी सर. अब अगर मैं 3 डायमेंशनली इसको बनाऊं आपके सामने ऐसे, दिस डेप्थ, तो हम 3 डायमेंशनली देखें, 3 डायमेंशन,
दिस इज योर वॉल जिसके ऊपर ये सारा कुछ एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी ड्रॉ अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। ठीक है, this side is, let's say, B, this side is H, so this area is equal to BH, so FR is basically gamma HC. HC would be equal to H by 2. H by 2, so H by 2 into BH, ठीक हो गया। Yes sir. दिस बेस वैल्यू, ये जो बेस मैंने ड्रॉ की है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू, इन बिटवीन वेरिएशन इस तरह से है सारी, RH into B. gamma H into B, ठीक है। This space would be showing a value of gamma H, only gamma H, ठीक है। ऐसे ये बेस की वैल्यू क्या होगी, जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी बेस की वैल्यू क्या होगी, gamma H, ठीक है। इस पे एग्री करते हैं सब। जी सर। So what we are going to do is we are going to write FR equals to gamma H by 2 into BH। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे ये बताएं कि जो ट्रायंगल आपके सामने जो प्रिज्म बना हुआ है 3 डायमेंशन में, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो मुझे इसकी वॉल्यूम बता सकता है? Yes sir. क्या 1 by 2 वॉल्यूम? 1 by 2 gamma H multiplied by H multiplied by B. ठीक है, अगर इसको समझ नहीं है उसके लिए मैं लिखता हूँ दोबारा, द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, ऐसा ही है, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस Yes sir. ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बेस व्हिच इज गामा H, ये बेस क्या है, गामा H, तो उसका हाफ ऑफ gamma H into height of the triangle which is H into the depth which is B. So this is the volume of this pressure prism. So we can conclude that the magnitude of the resultant force is equal to the volume of the pressure prism. ठीक हो गया? तो ग्राफिकली हमने अगर कैलकुलेट करना है तो हमें वो जो इक्वेशन हम यूज करें उसकी बजाय हम अगर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें प्रेशर प्रिज्म की, so we will get the magnitude of the resultant force. So volume of pressure prism equals to the magnitude resultant force represented by F. ठीक है, समझ आ गई बात? Yes sir. Next, the location of the resultant force. कहाँ पे एक्ट करेगी रिजल्टेंट फोर्स? अगर हम टॉप से मेजर करें, इट विल बी एक्टिंग एट सम पॉइंट, लेट्स से दिस ग्रीन कलर इज योर रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज योर FR. From top it would act at some distance 2/3 of the H, or from bottom it would act at H/3. ये मैंने कैसे बताया? तो स्टैटिक्स का नहीं होता, ट्रायंगल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इक्वली नहीं बनेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। फॉर ट्रायंगुलर सरफेस इट विल बी एक्टिंग एट दी
centroid of the triangle, and from base centroid of the triangle is 1/3 of the height, and from top it is 2/3 of the height. अगर आप bottom का reference बनाएंगे तो it would be h/3, और अगर आप top का reference बनाएंगे तो it would be 2/3h. ठीक है, फिर भी समझ नहीं आ रही तो you use this equation, yr equal to IXC of this triangle divided by YCA for this triangle plus YC. ठीक है, for triangle we can see that IXC is BA cube by 36. ठीक है, so what is B and what is A here? So B is this base and A is this height. ठीक है, so IXC is BA cube, B is the base which is gamma h, into A which is this height is h cube, so ये h4 हो गया, by 36 into YC which is the location of the centroid, that is 2/3h. ठीक है, टॉप को हमने रेफरेंस बनाया हुआ 2/3h into area of this triangle which is half gamma h square, half gamma h square plus YC which is again 2/3h. ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ इक्वेशन। सब टॉप से नहीं वो ले रहे हैं वाईसी, 0 पॉइंट से लेना होता है ना। I have made a mistake in this equation. और पिछला टॉपिक अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये इक्वेशन देखते मुझे बताना चाहिए था कि आपने ये इक्वेशन गलत लिखी है, जिसमें कोई गड़बड़ कर रहे हैं आप। तो पार्ट 0 होगा। 0 क्यों होगा? सिमेट्रिकल शेप है। Force is rectangular surface, not on a triangular surface. तो मुझे IXC किसका लेना चाहिए था? ट्रायंगल का। रेक्टेंगल का, और मैंने किस लिए लिखा है? ट्रायंगल। किसी ने मुझे करेक्ट नहीं किया, सब जो है वो बस जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो समझ आ गई जी, समझ आ गई। तो अगर आपको समझ आ गई तो आपको मुझे फौरन बताना चाहिए था कि सर आप ये गलत लिख रहे हैं। IX should be for the surface on which the force is acting, not the resultant surface that is being formed. ठीक है, ये तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बन रहा है, असल सरफेस तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, सो फॉर रेक्टेंगुलर सरफेस दिस इज 0। तो XC XYC 0 होता है। सॉरी 0 नहीं होगा, इसकी जो वैल्यू है हमने वो लिखनी है। फॉर रेक्टेंगुलर सरफेस इट इज 1/12 AB क्यूब या AB क्यूब। ठीक है, and that is basically B is this width and H is A। ठीक है, so 1/12 H cube into B। अब H जो है वो B है और A जो है वो that is basically B। यहाँ तो पे ये वो कैसे डायमेंशनल, डिसाइड करते हैं कि A क्या है और B क्या है? ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये जो फिगर जिससे आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, सही सही, A Y पे है और B X पे होता है। ठीक है, तो X के जो पैरेलल डायमेंशन दैट इज B B। और Y के जो पैरेलल दैट इज A। A। ठीक है, so 1/12 H cube B divided by, now I am again writing the formula for YR here। ये वाला फॉर्मूला गलत लिखा था, किसी ने इसको नहीं आइडेंटिफाई किया। डिवाइडेड बाय YCA, YC for rectangular is H/2 into area of the rectangle which is BH plus YC for the rectangle which is H/2. We just cancel out the terms, H with this cube that becomes square, this H that will remain just now an H, this B with B, and this 2 1s are and 2 6.
So YR is basically H by 6 plus H by 2. क्या आ जाएगा? एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 2 by 3H ऐसे ही है. 2 by 3 आ जाएगा ना? जी सर 2 by 3. So 2 by 3 H from the top. समझ आ गई बात? जी सर. So now the resultant force is acting on the centroid of this triangle, this prism जो कि बना है. ठीक है? तो आगे से चल ग्राफिकली जब भी ये प्रिज्म बनेगा तो हमकी रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी? On the centroid of this prism, that is 2 by 3 H from top and H by 3 from the bottom. Clear हो गई ये बात? So the magnitude of the resultant force is equal to the volume of the pressure prism and the location is centroid of the pressure prism. So हम इस चीज को भी लिख देते हैं. Location of FR is the centroid of the pressure prism. Formed इसलिए कि ये फोर्स एक्ट किस पे करी? रेक्टेंगुलर सरफेस पे, लेकिन जो प्रेशर प्रेस बन रहा है दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप, तो उसके सेंट्रॉइड पे ये एक्ट करेगी. एनी क्वेश्चन इन दिस? किसी को ये प्रेशर प्रेस समझना आया हो? इज इट क्लियर? Yes. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रेशर प्रेस की थोड़ी सी मजीद डेप्थ में जाते हैं. लेट्स से दिस इज द लिक्विड बॉडी एंड दिस इज द फ्री सरफेस. अब जो बॉडी है दैट इज नॉट इन अ टैंक, दैट इज सबमर्ज्ड समवेयर हियर. लेट्स से इसको हम डिफरेंट कलर. बॉडी इज समवेयर हियर and this depth is H1 and this depth is H2. We are interested in calculating the hydrostatic force and the location of the hydrostatic force on this body using the concept of pressure prism. एक तो तरीका है कि हम इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट करें, वो हमें आता है. अगर हम प्रेशर प्रिज्म का कंसेप्ट यूज करना चाहें तो बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट हम कैसे जो है ये कैलकुलेट करेंगे फोर्स? एनी आइडियाज? बॉक्स बना देंगे. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेट्स से this body is labeled as A and B. What we will do is we will redraw this body AB. ठीक है? Now at the free surface the pressure is 0, but at point A it is equal to gamma H1. Gamma H1. Good. So we draw this pressure as point A तक आते आते ये वैल्यू क्या हो गई? Gamma H1. And when we reach point B it would be equal to gamma H2 वैसे ही, which should be larger value as compared to gamma H1 क्योंकि H2 की वैल्यू ज्यादा है. फ्लूइड तो सेम है, gamma H2. And this elevation is basically क्या होगी elevation? H2 minus H1. H2 minus H1. Now if we see the pressure distribution would be something like this on the body. ऐसा ही है? जी sir. And now the distribution is sum of two distributions basically. ठीक है, नजर आ रही हूँ दो डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी हैं? Yes sir. एक ही जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और एक रेक्टेंगुलर. तो ट्रायंगुलर के अंदर तो वेरिएशन हमें वो लीनियर नजर आएगी. रेक्टेंगुलर के अंदर क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू दैट इज
गैमा H1, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है गैमा H1। तो सर ये डेप्थ के साथ इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ये गामा H1 कांस्टेंट कैसे रहेगा रेक्टेंगल में? कांस्टेंट ही रहेगा। डायमेंशन क्या है, रेक्टेंगल की डायमेंशन चेंज होती है डेप्थ के साथ। नहीं सर, यहाँ तो हम हाइट को नहीं देख रहे कि H1 ऊपर से जो हाइट आ रही है और H2 दैट जो नीचे हाइट वाली विल बेस बी की हाइट। वेरिड इन दिस ट्रायंगल। वो जो वेरिएशन है वो कहाँ छुपी हुई है, हम ओवरऑल बात करेंगे ना। अभी तो हम उसको डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो ट्रायंगुलर वाली तो फिक्स्ड रह रही है, बट जो ट्रायंगुलर जो है उसके अंदर वेरिएशन है, रेक्टेंगुलर वाली जो है वो फिक्स्ड रह रही है, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन। समझ आ गई बात? ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि H1 तो हम ऊपर से यानी हमारी फ्री सरफेस से हम काउंट कर रहे हैं, और H2 हमारा ऊपर से ही ये नीचे बेस लाइन तक है। तो तो चाहे इसको ये ऐसे ट्राइंगल हो समझें, या रेक्टेंगल हो। जी। तो ऐसे समझें, ये आपकी ओवरऑल फिगर बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। इस फिगर के दो पार्ट्स हैं, दिस ट्रायंगुलर पार्ट एंड दिस रेक्टेंगुलर पार्ट। ओवरऑल वेरिएशन यहाँ पे गैमा H1 है स्टार्टिंग में, और ये जो बॉटम है इसमें ये गैमा H2 ऐसे ही है। जी। अब ये वेरिएशन कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, द कांस्टेंट पार्ट विच इज गैमा H1, ठीक है, क्लियर, एंड द वेरिंग पार्ट विच इज दिस ट्रायंगुलर पार्ट। समझ आ गई बात? हमने कहा कि ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट, हमने वो कांस्टेंट पार्ट अलग कर लिया और जो वेरिंग पार्ट है वो अलग कर लिया, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है आप जो उसको सर, अंडरस्टैंड करें, लेकिन आप वैसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करेंगे, ओवरऑल तो ये हो रहा है। हमने उस ओवरऑल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखी, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में हो क्या रहा है, तो दो फिगर्स बन रही है हमारे पास, एक फिगर बन रही है जो रेक्टेंगल है और एक बन रही है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग दैट वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देखें ना ट्रायंगल के टॉप पे यहाँ पे, तो अगर मैं ट्रायंगुलर फिगर को देखूं सिर्फ, तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, वैल्यू शुड बी 0, ऐसे ही है सिर्फ ट्रायंगल को देखूं अगर। और अगर जी बॉटम पे देखूं तो ट्रायंगल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये वाली वैल्यू गामा H2 गैमा H2 होगी। नहीं, गामा H1। नहीं, गैमा H1 भी नहीं होगी। थोड़ा सा फिगर को राइट में देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे ये क्या है, H2 माइनस H1। जी जी। ये ट्रायंगल की जो वैल्यू दैट would be gamma H2 minus H1. This rectangular dimension would be gamma H1 and this total dimension would be gamma H2. क्लियर? अब समझ आ गई बात? जी ठीक है। इसी वेरिएशन को अगर हम रिजल्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहें, तो नाउ वी सी दैट देयर आर टू रिजल्टेंट फोर्सेस, one that is acting in this rectangular area and the other one that is acting in this triangular area, ठीक है, दो ही होंगी जी, ठीक है। जी। We label it as F1 and we label it as the other force as F2. जी, F2 और F1 के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे? Let's start with F1. F1 would be equal to वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ऐसा ही है, यस जी। सर। और वो कितनी होगी? If this depth is, let's say, this is the, I draw the complete figure, अगर इसको 3 डायमेंशन में शो करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह की चीज होगी, ठीक है। तो इस दिस डायमेंशन इज B अगेन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी? RH1 into B into H2 minus H1। जी, दिस, उसको R नहीं बोले, उसको गैमा बोले, फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे यस किसी सर, टाइम वो पे। डायग्राम लिखा हुआ है सर। वो सिंपल गैमा का है, आर नहीं है, उसको गैमा का सिंबल आर अगर मैं लिखूंगा तो उसको इस तरह लिखूंगा, यहाँ पे इस तरह लिखूंगा छोटा करके, ठीक है। अगर मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो दैट इज गैमा, ठीक है। ठीक।
जी दी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बन रहा है हमारे पास gamma h1 into h2 minus h1 दिस इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज gamma h1 मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ व्हिच इज b ठीक है यही वॉल्यूम होगी जिस रेक्टेंगुलर बॉडी की 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉडी को क्यूबॉइड कहते हैं जी सर f2 would be equal to the volume of this f2 किस इक्वल होगा जी ट्रायंगुलर पार्ट की वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दिस प्रेशर प्रिज्म इन द ट्रायंगुलर प्रेशर प्रिज्म ठीक है ये रेक्टेंगुलर प्रेशर प्रिज्म और ये ट्रायंगुलर प्रेशर प्रिज्म इसकी वॉल्यूम किस इक्वल होगी एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट half of gamma into h2 minus h1 height is h2 minus h1 तो स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय b ठीक है y1 क्या होगा लोकेशन ऑफ f1 दैट वुड बी इक्वल टू सेंटरोइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉडी ऐसे ही है h2 minus h1 divided by 2 and what would be y2 that would be equal to centroid of this triangular body 2 by 3 ठीक है? h2 minus h1 yes 2 by 3 from the top ठीक है 2 by 3 Top. into h2 minus h1 and now what's the resultant force the total resultant force that would be fr और सिंपली एड अप कर देंगे आप f1 और f2 क्योंकि डायरेक्शन सबकी एक ही तरह है कोई वेक्टर्स नहीं है कि डायरेक्शंस डिफरेंट है तो इसलिए सिंपली हमने f1 और f2 के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देना तो हमारे पास fr आ जाएगी ठीक है जी सर एंड व्हाट इज yr नाउ yr सर दोनों के बीच में f1 मल्टीप्लाई बाय y2 और f2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 बट वी डू उसको थोड़ा सिंपलीफाई अगर मैं समझाऊं वी डिफाइन अ पॉइंट ओ है ठीक है ये जो लोकेशन है यहाँ पे हम पॉइंट ओ डिफाइन करते हैं एंड वी अप्लाई द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट मोमेंट क्या है जी ये मोमेंट ऑफ f1 एंड f2 शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही होना चाहिए जी सर moment of f1 plus f2 should be equal to the moment of the resultant force. So yr is the perpendicular distance of the resultant force from the point O. So yr into fr should be equal to y1 into f1 plus y2 into f2. In this equation, everything is known except yr. So yr would be equal to y1 f1 plus y2 f2 divided by fr. Clear? जी सर Any question in that? Any query, any question, any misunderstanding जिसको आप clarify करना चाहते हो? You may ask. सर ये सेकंड स्टेप में मैंने y को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इस जगह पे पूछ रहे हैं जी 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 yr जो कि लोकेशन है रिजल्टेंट फोर्स की इसका मोमेंट कैलकुलेट किया दिस टोटल मोमेंट and this should be equal to the moments of the component from which fr is being made from which fr is being calculated ऐसे ही है ना स्टैटिक्स में ऐसा ही पढ़ा होगा summation of the moments of the component should be equal to the summation of the moment of the total force यस सर तो ये वही इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम की यहाँ पे लिख दी ठीक है और सी के अंदर जो अननोन था वो हमने कैलकुलेट कर लिया इज इट क्लियर जी सर यस अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं कि एक चीज तो हमने कैलकुलेट की बाय कि हमने रेक्टेंगुलर बनाया हमने ट्रायंगल बनाया दोनों की फोर्सेस कैलकुलेट की उनके लोकेशंस कैलकुलेट की फिर रिजल्टेंट फोर्स उनके सम से कैलकुलेट की ओवरऑल ये जो फिगर है
ये जो आपके सामने क्रॉस सेक्शन बन रहा है ऑफ दिस सॉर्ट, लेट्स से, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस फिगर कॉल्ड? जिसमें ये ट्रेपेजियम टाइप। यस, इसको ट्रापेजियम कहते हैं। गैमा H2 ये डायमेंशन है, H2 माइनस H1 ये डायमेंशन है, गैमा H1 ये डायमेंशन है, विथ इट्स डेप्थ बीइंग B। ठीक है, B इज इट्स डेप्थ। 3 डायमेंशन में ड्रॉ करें तो दिस इज दी डेप्थ B। वॉल्यूम ऑफ ट्रापेजियम क्या होती है? सर हाफ क्या नाम है, हाफ हाइट और फिर वो गैमा H1 माइनस गैमा H2 करेंगे, नहीं प्लस करेंगे और फिर इनटू B। जी, वो एवरेज ऑफ दीज टू ऐसा ही है, एवरेज ऑफ दीज टू बेसिस। ठीक है, इनको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ। एवरेज ऑफ दीज टू डायमेंशंस इनटू दिस हाइट इनटू दिस डेप्थ। सो अगर हम वॉल्यूम लिखें इस ट्रापेजियम की, वॉल्यूम इज इक्वल टू एवरेज क्या होती है? हाफ गैमा H2 प्लस H1 यही बन रही है जी, एवरेज इन 2 डायमेंशंस की। जी जी। इनटू H2 माइनस H1 into B, this should be equal to half gamma H2 square minus H1 square। यही बन जाएगी क्लोज फॉर्म में, जी सर। जी सर। into B। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे the resultant force should be this value। करके देखिएगा, ठीक है? this should be equal to your resultant force। resultant force की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है? and the location YR should be the centroid of this trapezium। ठीक है, ठीक है सर। समझ आ गई बात? तो ये आपने करके देखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एनी क्वेश्चन जी, किसी को क्यूरी हो इसके अंदर? तो इसी प्रेशर प्रेस के कंसेप्ट की अब हम एक और वेरिएशन देखते हैं। 2 वेरिएशन हमने देख ली कि एक तो अगर वो टॉप सरफेस से है किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, एक अगर बॉडी सबमर्ज्ड है किसी हाइट के अंदर। ठीक है, द नेक्स्ट वेरिएशन की अगर बॉडी इंक्लाइंड है। हाँ सर, अभी ब्रेक मिल सकती है? एक पेड़ हो गया। हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे, वजह से हम ब्रेक करें उस पर सारी कंटिन्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक। विल एंड इट एट इट्स 9:40। क्लास एंड होती है जी हमारी 10:30 में एंड होती है क्लास। जी सर। तो 10:20 पे हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, 10:20 10:15 पे खत्म कर लेंगे। ओके सर। ओके, द नेक्स्ट वेरिएशन इज के अगर बॉडी इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर इंक्लाइंड बॉडी, जैसा कि हम अभी पीछे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जब इक्वेशंस यूज कर रहे थे, हम कैलकुलेट करते हुए आए, तो प्रेशर प्रेस तभी हेल्पफुल है कि अगर बॉडी का क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अदरवाइज कोई और क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर है या कोई इरेगुलर शेप्ड है, तो फिर आप प्रेशर प्रेस का कंसेप्ट कभी अप्लाई नहीं करेंगे। लेट्स से दिस इज योर फ्री सरफेस। ठीक है, और बॉडी जो है वो कुछ इस तरह की लेट्स से इंक्लाइंड ओरिएंटेशन पे है, और आप इस बॉडी के ऊपर प्रेशर प्रेस में कंसेप्ट के जरिए फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। So you should remember the first limitation that this body should have what G? Rectangular cross section। फिर तो आप प्रेशर प्रेस में कंसेप्ट जरूर यूज करें। ठीक है, अगर इफ इट इज हैविंग एनी अदर क्रॉस सेक्शनल शेप लाइक सर्कल है, ओवल है, ट्रायंगल है, कोई भी या इसके अलावा कोई इरेगुलर शेप बॉडी है, तो फिर आप प्रेशर प्रेस में कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वुड मेक
योर इक्वेशंस वेरी डिफिकल्ट। तो जो एरियाज कैलकुलेट करने हैं उन एरियाज के लिए आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि वो तो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जो इक्वेशन हमने डेवलप की थी उसके अंदर पहले से हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। दैट्स व्हाई इट इज मोर इजी टू यूज दोज इक्वेशन इंस्टेड ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रेशर प्रिज्म। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अगर तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है फिर हम ये आसानी से यूज कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें चाहिए ये वाली डेप्थ which is h1 and we need this depth h2। प्रेशर जो है हमेशा इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ऐसे ही है जैसे कि इस फिगर में आपको नजर आ रहा है, प्रेशर विल एक्ट परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो प्रेशर, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर प्रेशर आते आते यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे वैल्यू गैमा h1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू गैमा h2, ऐसे ही है। जी सर। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रेशर प्रिज्म यू विल गेट, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी सर। बाकी फिर उसी तरह इस ट्रापेजियम बनेगा, इस ट्रापेजियम का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और उसी तरह से आप जो है वो ट्रापेजियम के ऊपर जो है वो सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दो जो फोर्सेस, दो एरियाज बनेंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, उन दोनों की वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उन दोनों का सम जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, एंड अगेन सेंट्रॉइड दोनों बॉडी कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट की इक्वेशन अप्लाई करके आप लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंसेप्ट भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। जो लास्ट इसमें वेरिएशन है दैट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर क्या हो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड करें, लेट्स गो टू दिस फर्स्ट वेरिएशन। इसी वेरिएशन के अंदर मैं अगर ये कहता हूँ कि यहाँ पे फ्री सरफेस है, हम एब्सोलूट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एब्सोलूट प्रेशर के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो व्हाट विल हैपन? नो, द स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट बी 0, ऐसे ही है। जी। यस सर। दैट वुड बी इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ, मैं बॉडी आपके सामने दोबारा से ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज द टैंक वॉल। अब इसके फ्री सरफेस पे हमारे पास दिस इज द फ्री सरफेस, बट वी आर नाउ यूजिंग दी एब्सोलूट वैल्यूज। द एब्सोलूट वैल्यूज में यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस एलिवेशन इज h। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है तो जितना भी प्रेशर है वो इज द डायमेंशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। तो ओवरऑल प्रेशर जो है वो सारे का सारा प्रेशर प्रेस एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, ऐसे ही है, बाय दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक। समझ आ रही है बात? जी सर। यस। एंड नाउ दिस वैल्यू वुड बी gamma h plus pressure atmospheric। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन अब होगा क्या, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा है प्रेशर, तो हम उसको बॉडी की दूसरी साइड पे जहाँ पे फ्लूइड नहीं भी मौजूद वहां पे तो एक्ट करने से नहीं रोक सकते ना, ऐसे ही है। यस सर। इट मींस कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस साइड पे भी एक्ट करेगा, क्योंकि एक बॉडी अगर उसके राइट साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, उसके लेफ्ट साइड पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, तभी तो अपनी शेप मेंटेन कर रही है, ऐसे ही है। इसका मतलब जी यहाँ पे भी सर। थ्रू आउट इतनी ही वैल्यू की एक फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है,
फिक्स उतने ही एरिया की फोर्स। तो अगर ये फोर्स जो है P ATM into A ऑफ दिस बॉडी है, तो दिस फोर्स इज आल्सो प्रेशर एटमॉस्फेरिक इनटू A बिकॉज इट्स एक्टिंग ऑन द सेम एरिया। तो इफेक्ट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो नेट शेप फिर क्या बचेगी हमारे पास, यही वाली बच जाएगी, ऐसा ही है। जी सर। नेट शेप तो यही होगी जिसके ऊपर हमारी, इसका मतलब चाहे हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करें चाहे हम गेज वैल्यू यूज करें, हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी फ्रॉम फ्री सरफेस वो हमेशा सेम आएगी। क्लियर है? जी सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी सबको ये चीज? जी सर। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, से अगली जो प्रॉब्लम है, जो वेरिएशन है कि लेट्स से प्रेशर एटमॉस्फेरिक तो नहीं है, बट द बॉडी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज इन अ क्लोज टैंक। लेट्स से ये हमारा टैंक है, दिस इज ये हमारे पास टैंक है जिसका टॉप सरफेस इस तरह से नजर आ रहा है। एंड दिस टैंक इज क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप। ये जो टॉप है ये अब फ्री सरफेस नहीं है, दिस इज लेट्स से क्लोज फ्रॉम द टॉप। ठीक है, बंद है टैंक ऊपर से। And the water level is starting somewhere or the fluid level is starting somewhere from here. और हम कहते हैं ये जो वॉल है ना इतनी, ये इस एलिवेशन की, लेट्स से दिस H1, इस पे हमें the total depth of the tank from top is let's say H, and this water level starting from the top is H1 and this is H2, let's say this is H2। ठीक है, ये H1 है और ये H2 है। ठीक है, ये जो H2 हाइट की वॉल है इसके लिए हमें H2 लेट्स से ये पूरी हाइट, ये पूरी वॉल जहाँ से वाटर लेवल स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हमें प्रेशर प्रिज्म ड्रॉ करना है। देयर इज सम प्रेशर ऑफ द एयर हेयर। यहाँ पे फ्री सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर PS एक्ट कर रहा है। अब ये जो सरफेस है ये फ्री सरफेस नहीं, इसके ऊपर कोई प्रेशर PS एक्ट कर रहा है। ठीक है, PS किसके इक्वल होगा? PS वुड बी इक्वल टू, इफ वी हैव एयर हेयर, PS वुड बी इक्वल टू gamma ऑफ एयर इनटू H1, ऐसे ही है। तो अगर मैंने इस वॉल के ऊपर, जिसको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रेशर प्रिज्म ड्रॉ करना है, ये वाली वॉल जो है, assuming it as rectangle। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए रेक्टेंगल assume कर लो। तो प्रेशर प्रिज्म कैसे ड्रॉ होगा? एनी आइडियाज? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो जब मैं सवाल पूछता हूँ तो इसका जवाब क्यों नहीं देते? कोई यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं हो रही, आई जस्ट वांट टू सी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बन रही है। इसलिए आंसर देने में या कुछ क्यूरी जो मैं पूछता हूँ उसको आंसर बैक करने में घबराया नहीं करें। जी, कैसा प्रेशर प्रिज्म बनेगा? वी रीड्रॉ दी वॉल है जो हमारे इंटरेस्ट की वॉल है। ठीक है, मार्किंग इट्स डायमेंशन एज H2। जी, अब प्रेशर प्रिज्म कैसा बनेगा इसके ऊपर? यहाँ पे 0 वैल्यू होगी टॉप पे। क्या हो गया, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी आवाज सर एक सही बार से हम आ रही है? अपने इसका स्क्रीन रिपीट कर क्लियर दें, है? जरा क्लियर हो जाए।
सर आवाज आ देखिए रही मैंने है? अभी आपको, जी जी आ रही है, मैंने आपको अभी बताया कि हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट इंक्लूड करना चाहें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, क्योंकि जितना हम राइट साइड पे जितना ये वो समझ वाटर आ के रही अंदर एक्टर उतना राइट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए गेज प्रेशर हो या एब्सोल्यूट प्रेशर हो, इफेक्टिवली दैट इज गेज प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब हमने क्या किया, इससे पहले तो हम हमेशा फ्री सरफेस की बात कर रहे थे, अब हमने कहा कि नहीं, बॉडी जो है वो किसी क्लोज टैंक के अंदर पड़ी हुई है, लेट्स से दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉडी जो इस क्लोज टैंक के अंदर मैंने रखी हुई है, अब हमारे पास फ्री सरफेस नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब उसके ऊपर मैंने प्रेशर प्रिज्म ड्रॉ करना हो तो फिर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, फ्री सरफेस के ऊपर जो अब जो सरफेस ऑफ लिक्विड बन रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर दैट इज PS, उसके नीचे जो एलिवेशन है जहां से हमने स्टार्ट करना है दैट इज H1, और जो बॉडी की अपनी एलिवेशन है दैट इज H2, और टैंक की टोटल डेप्थ जो है दैट इज H। तो आपको बात समझ आ गई है? यस सर। तो अब आप मुझे प्रेशर प्रिज्म के हवाले से गाइड कर सकते हैं थोड़ा सा, कैसे बनेगा प्रेशर प्रिज्म। जिस तरह ऊपर वाले केस में था वैसा ही होगा ना, लेकिन बस ये कि जो राइट साइड से जो उसको बैलेंस आउट करने वाला इफेक्ट है वो चीज नहीं आएगी। जी, तो अब जो है वो ऐड हो जाएंगी वैल्यू कुछ यहाँ पे, यस सर। कुछ हमारे पास जो है वो ऐसे होगा कि दिस, इसको ब्रेक कर करके ड्रॉ करता हूँ, दिस वुड बी PS into the area of, into the cross sectional area, ठीक है, इस पे एक्ट कर रही है, PS into A, प्लस इसमें जो अगला कंपोनेंट हम ऐड करेंगे दैट वुड बी gamma of the liquid into this height, ठीक है, let's say this height is H1, so gamma H1, और उसके बाद फिर हम इस डेप्थ तक जाएंगे जो हमारी इंटरेस्ट की डेप्थ है, लेट्स से दैट इज पॉइंट gamma H2, ठीक है, but this dimension will always remain surface pressure into S into A, ठीक है, इसको राइट से ड्रॉ करने से एक डायमेंशन फिक्स रहेगी। उसके बाद जो अगली डायमेंशन है ये वाली, ये भी gamma H1 रहेगी, and this last dimension would be equal to gamma H2, ठीक है, this would be gamma H2, क्लियर है? तो रेड वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? द सरफेस प्रेशर, जो टैंक के अब सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, विच इज गैमा ऑफ द एयर इनटू द प्रेशर इनटू द हाइट, जिस हाइट पे एयर लिक्विड लेवल है H1, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑरेंज वाला रेक्टेंगल दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस प्रेशर, जो हम लिक्विड सरफेस के अंदर मूव किए हैं, जहाँ से हमारी बॉडी का इंटरेस्ट, जिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है ये वाला, और लास्ट जो ब्लू लाइन है वो फिर इस डेप्थ को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डेप्थ को जिसको हम H2 कह रहे हैं वो हम बात करें, ठीक है। ठीक है सर क्लियर? यानी सर मैं कुछ कह सकता हूँ? जी जी जरूर। सर यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी ये जो हमारी शेप्स बनेंगी, जैसे यहाँ 2 रेक्टेंगल्स और एक ट्रायंगल बनी है, तो ये उतनी ही ज़्यादा बनेंगी कि जितनी हाइट्स हमारे पास आएंगी। मसलन यहाँ पर हमारे पास पहले फ्री थी, फिर लिक्विड की सरफेस आई, फिर उसके बाद हम मजीद नीचे गए तो बॉडी की सरफेस आई, और फिर बॉडी की अपनी हाइट आई। तो यानी बिल्कुल ऐसे, जितनी हाइट्स कवर होंगी उतनी ही हमारे पास शेप्स बनेंगी प्रेशर प्रिज्म के कंसेप्ट के मुताबिक। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो? अभी बड़ी सिंपल शेप्स बन रही, अभी हम इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, जो इस टॉपिक के अंदर लाइक कह लेंगे जो इसका एंड है, या इसकी जो मोस्ट कम्प्लेक्स केस हो सकता है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम न्यू फाइल, लेट्स से we have a container like this, the top surface, this empty area, and then this
and then this टॉप सर्कुलर बनाने के लिए हम रेक्टेंगल रखते हैं ताकि आपको समझने में जो प्रॉब्लम ना हो. This is the tank. This half is filled with air, the top half. This is filled with liquid 1. This is filled with liquid 2. Okay. Let's say this is. Let's see liquid 1. Sorry. This is liquid 1. Then we have liquid 2. Then we have liquid 3. And this empty space is air. Air. The total height of this tank is H. This height is H1. This is H2, column height. And this is H3. And this is H4. Specific weight of this is gamma 2. This is gamma 3. And for this is, let's see, we have gamma 4. And for this we have gamma 1. G. Anyone who can help me with drawing the pressure pairs for this? Starting from the top surface of the tank to the end. Starting from this 0 to H. So triangle पे trapeziums बनेंगे इतना करके करना है. At the top surface we will have, I draw this wall जो हमारे interest की wall है. Let's say this is the H. Starting from top we will have 0 pressure, right? Then we will come at H1. This value would be gamma H1, right? जी सर. उसके बाद उतना ही फिक्स्ड वैल्यू तो नीचे आना ही आना है हमने, ठीक है? टिल H2 ये प्रेशर तो एक्ट करेगा ही, प्लस gamma 2 into H2, ठीक है? This is gamma 2. H2 होगा या H1 plus H2 होगा? H1 plus H2. टोटल लेंथ H1 plus H2 होगी, gamma 2 H2 सर plus सिर्फ gamma H2 1 होगा ना? H1, ठीक है? तो ये gamma 2 H2 होगा, ठीक है? सिर्फ H2 होगा, याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट ये वैल्यू तो आएगी H3 तक, ठीक है? ये भी आएगी. Next that we'll have gamma 3, sorry, something this. This would be gamma 3 H3, ठीक है? एंड फाइनली ये सारी वैल्यूज तो आएंगी ही लास्ट कॉलम के ऊपर, प्लस दिस वैल्यू ऑफ दिस वेरिएशन ऑफ gamma 4 H4, ठीक है? जी सर.
अब आपसे ये पूछा जाए कि ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी इस वॉल के ऊपर? सर वॉल्यूम सब कुछ का। इस पूरी जो फिगर है इसका वॉल्यूम, ठीक है। ऑलराइट, समझ आ गई? जी यस सर। सर। तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? दिस base which is gamma 4 h4 plus gamma 3 h3 plus gamma 2 h2 plus gamma 1 h1 into this height which is ऐसे होगा। सर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है जी R2 R3 और gamma 2 gamma 3 gamma 4 के क्रॉस, सर ये हमने स्ट्रेट ड्रॉ किया ना, ये स्ट्रेट होगा तो नहीं ना? ये हमें लीनियर नजर आ रहा है। जब लिक्विड चेंज होंगे ना, इट वुड बी वो लाइक दिस, एंगल्स चेंज कैन हो बी रहे लाइक, ठीक है, तो इट कैन बी लाइक दिस, देन इट कैन बी लाइक दिस, देन इट कैन बी लाइक दिस, इस तरह की चीज होगी, ठीक है। हैं। ठीक है सर। डिपेंडिंग अपॉन के लिक्विड की स्पेसिफिक वेट कितना है, वो ड्रॉ करते हुए स्ट्रेट लग रहा है आपको, बट दैट विल, जो उसका एंगल है वो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू दी लिक्विड गैमा के हवाले से। सेम लिक्विड होगा फिर तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यूनिफॉर्म। जब लिक्विड्स चेंज होंगे, गैमा चेंज होंगे, तो फिर ये प्रेशर की वेरिएशन इस तरह की फिक्स नहीं, बल्कि एंगल भी चेंज होंगे। प्रेशर किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम चेंज होगा, ठीक है। सो दिस हाइट h, ये बेस क्या बनेगी जी? एवरेज ऑफ दीज टू हाइट्स, ऐसे ही है अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है। गैमा 4 प्लस गैमा 3 प्लस गैमा 2 प्लस गैमा 1 h1 प्लस गैमा 1 h1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू डेप्थ। लेट्स से डेप्थ इज अगेन b है, अगर 3 डायमेंशन में इसको देखने हैं तो दैट डेप्थ इज b, यहाँ पे भी वो b है, और this elevation is h again, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होगा? यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी अगेन। तो अब इसके सिंपल से सॉल्यूशंस, क्योंकि ये बड़ी शेप को आपको कैलकुलेट करना मुश्किल है, सिंपल सॉल्यूशन क्या करते हैं हम, हर जो शेप बन रही है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इसके लिए f1 डिफाइन करेंगे, इसके लिए f2 डिफाइन करेंगे, इसके लिए f3 f4 f5 देन f6 7 8 एंड 9, 9 फोर्सेस मिलके एक रिजल्टेंट बनाएंगी। We can calculate these 9 forces, their locations, and then finally the resultant force. ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है कि ये जो बड़े हाफ्स बन रहे हैं, दिस ट्रेपीजियम एंड दिस ट्रेपीजियम, इनके लिए एक एक फोर्स डिफाइन कर दें। लेट्स से FA फॉर दिस होल फिगर, FB फॉर दिस होल फिगर एंड FC फॉर दिस होल फिगर, ठीक है। तो FA FB और FC कैलकुलेट करें, उनको सम करें, FR आ जाएगा, और फिर YA YB YC हम कैलकुलेट करें यूजिंग सेंट्रॉइड नॉलेज, जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन सेंट्रॉइड के हवाले से, और मोमेंट्स अप्लाई करके YR कैलकुलेट करना है। तो कोई भी कंसेप्ट आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं जो आपको लगे आपके लिए आसान है, ठीक है। समझ आ गई बात जी? जी सर। जस्ट टू एक छोटी सी प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको मजीद जो है टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर इसको हम क्लोज कर सकें आज के लेक्चर में। लेट्स से वी हैव दिस टैंक, टैंक है, अभी बुक के एग्जाम्पल भी है, अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे तो वहां से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज द टैंक, इसके ऊपर एक गेज है विच इज रीडिंग लेट्स से 50 किलो पास्कल्स, एंड द अपर हाफ जो ये भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस हाफ इज फिल्ड विद एयर, and the remaining is filled with some oil having specific gravity, some oil with specific gravity of 0.9, specific gravity of 0.9,
In this tank there is a rectangular opening here. यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है जो ओपनिंग है इस टैंक के अंदर, जहाँ से आप लिक्विड को फ्लो करा सकते हैं, ऑयल को रिमूव कर सकते हैं. एंड द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ओपनिंग इज 0.6 meters. जो हाइट है इसकी दैट इज 0.6 meters. The height of the oil column above this plate is 2 meters. You need to calculate the resultant force on this plate. ठीक है, resultant force कैलकुलेट करनी है आपने इस प्लेट के ऊपर और उसकी लोकेशन. तो कैलकुलेट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, इस प्लेट को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, you know this height of the plate is 0.6 meters. प्लेट के स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा जी? यहाँ पे 50 किलो पास्कल 50 किलो पास्कल प्लस अगर ऑयल का स्पेसिफिक वेट और वो जो हाइट है. ठीक है, तो दिस फर्स्ट हाफ इज लेट्स से 50 किलो पास्कल्स एंड दिस रिमेनिंग लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज लेट्स से gamma of oil multiply by the एलिवेशन. कितनी एलिवेशन पे है जी ऑयल इसके ऊपर? 2 meters. ठीक है, 2 meters डेप्थ तक की प्लेट आ रही है, तो प्लेट के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये प्रेशर होगा. एंड पे कितना होगा? दिस टोटल 50 प्लस gamma oil into 2 प्लस 0.6 दिस 0.6. ठीक है, सो 50, ये वाली 50 की लाइन आ गई, प्लस gamma oil into 2 and then this variation लीनियर लाइन बनेगी, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं. दिस वुड बी इक्वल टू gamma oil into 0.6. ठीक है, जी सर. gamma oil into 2 and this is again 50 kilopascals. Clear? यस सर. रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे अब. जी सर. F1 कैलकुलेट करनी है और आपने F2 कैलकुलेट करनी है. F1 क्योंकि ये एक ही सॉरी ये तो एक ही रेक्टेंगल बन रहा है ना, ऐसे ही डिफरेंट कलर से ड्रॉ करूँ तो देयर वुड बी वन फोर्स इन दिस रेक्टेंगल. बड़े वाला रेक्टेंगल बन रहा है क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है दोनों. ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स है दैट इज लेट्स से F1 एक्टिंग एट विच लोकेशन 0.6 डिवाइड बाय 2. सर और सेंट्रॉइड वाली में जो है वो F2 है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म एक्टिंग एट h/3 0.6/3. ठीक है, बॉटम से. तो दोनों फोर्सेस आगे ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, प्लस मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन आ जाएगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन जी? यस सर. आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को चीज समझ ना आई हो? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के हवाले से ये आपकी एग्जांपल प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करनी है, जो हमने ये लास्ट टॉपिक कवर किया है. प्रेशर प्रिज्म के हवाले से एक दो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, ट्यूसडे को. फिर उसके बाद जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस. अगर कर्व सरफेस हो लिक्विड के अंदर तो वहां पे फिर हम फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है.